أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم तबसरतुल मुतअल्लिमीन में हमारी जो फसल है वो फसल सालिस है। इसके बाद हमारी हो रही है फी कैफियतिही, यानी फी कैफियतिल वुजू, वुजू की कैफियत के बारे में। और आज जो है हमारे पास वो है मस्हु रिजलैने। क्या होगा मौलाना? मस्हु रिजलैने यानी दोनों पैरों की खाल का मसा करना। कहाँ से कैसे करना है मौलाना? मिन रुऊसिल असाबिअ, रुऊस रअस की जमा है। मिन रुऊसिल असाबिअ, उंगलियों के सिरे से। उंगलियों के सिरे से कहाँ तक करना है? इलल कअबैने, कअबैन तक। और काब किसको कहते हैं मौलाना? वो बुलंद जगह, पैर की बुलंद जगह को क्या कहा जाता है? काब कहा जाता है। कदम के अंदर जो ऊंची जगह होती है क्या है? काब है। वयजूजु मनकूसन, क्या माने होगा मौलाना? वयजूजु मनकूसन, मनकूस जानते हैं मौलाना किसको कहते हैं? अक्स समझते हो? उल्टा, यानी इसका उल्टा मसा भी जायज है। यानी पैर की उंगलियों की तरफ से न करके अगर इधर भी कर देंगे ऊपर से नीचे की तरफ तो चलेगा। सर के मसे में नहीं जायज है। हाथ के धुलने में मनकूस जायज नहीं है। चेहरे के धुलने में अक्स जायज नहीं है। लेकिन पैर के मसे में उल्टा मसा जायज है। और क्या वाजिब है मौलाना? तरतीब अलामा कुलना, और तरतीब अलामा कुलना वैसे ही जैसे हमने कही। यानी पहले नियत करेगा, फिर चेहरे को धुलेगा, फिर दोनों हाथों को धुलेगा, फिर सर का मसा, फिर पैर का मसा। और सातवां वाजिब है मौलाना वल मुवालातु, मुवालात। क्या होता है मुवालात? कह रहे हैं वहिया मुताबिअतुल अफ़आली बअदुहा लिबअदिन, अफ़आल का अंजाम देना एक के बाद एक। मुताबिआ किसको बोलेंगे? मुताबिआ किसको बोलेंगे? जो एक के बाद एक किया जाए। बास को बास के बाद अंजाम देना। मिन गैर ताखीरिन, क्या माने होगा मौलाना मिन गैर ताखीरिन? यानी बिना फासले के। यानी सही नहीं है कि अभी 5 मिनट पहले उसने चेहरे को धुला, फिर आधे घंटे बाद दोनों हाथों को धुले। सही है? जायज नहीं है। या इसी तरह सर का मसा करे और कुछ देर चल के फिर के घूम टहल के फिर क्या करे? पैर का मसा करे। मुआलात क्या हो गया? हाथ धुलना। पैदल नहीं हो गया। मुआलात यानी जो तरतीब है वो तरतीब खत्म हो गई। अब आएगा मुस्तहब मौलाना। वाजिब समझ में आया कि नहीं आया? आपको मौलाना अपना अनुसार तो आइए मुस्तहब देख लेते हैं।
وَيُسْتَحَبُّ فِيهِ غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء مرة من حدث النوم والبول ومرتين من الغائط وثلاثا من الجنابة. سمجھ گیا مولانا؟ وَيُسْتَحَبُّ فِيهِ غسل الیدین، وضو میں ہاتھوں کا دھلنا مستحب ہے. اور زندین کہتے ہیں مولانا کہاں سے دھلے گا؟ گٹے سے، انگلیوں، گٹے سے انگلیوں تک. یہ جو گٹا ہے جہاں سے کلائی کے نیچے والا حصہ جہاں سے ہاتھ شروع ہوتا ہے، صحیح ہے، یہاں سے لے کے کہاں تک؟ انگلیوں تک ہاتھ کا دھلنا. پہلے یہ ہاتھ دھلائے گا. کیسے کیسے دھلنا ہے مولانا؟ من حدث النوم، سو کے اٹھے ہیں تو ایک مرتبہ. والبول، اور اسی طرح پیشاب کیا ہے تو ایک مرتبہ. اس کے بعد کہہ رہے ہیں اگر وضو کا سبب پخانہ ہو، غائط ہو، کتنی بار دھلے گا؟ 2 مرتبہ. صحیح ہے. اور وضو کا سبب اگر غسل جنابت ہو، 3 مرتبہ. اچھا آیا؟ یعنی دیکھیے پھر سے دیکھیے عبارت، وَيُسْتَحَبُّ فِيهِ غَسْلُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الْإِنَاءَ. یہ کیسے مولانا ہے؟ یہ اس طرح سے ہے کہ جیسے کوئی بڑا برتن ہے اس میں آپ ہاتھ ڈال رہے ہیں، تو ہاتھ ڈالنے سے پہلے کیا کریں؟ پہلے اپنے ہاتھوں کو دھلیں. صحیح، قبل ادخالہما سے سمجھ آ رہا ہے؟ ہاتھوں کو داخل کرنا پانی میں، اور یوں چلو میں لے کے آپ پانی کر رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں. تو کہا اگر آپ سو کے اٹھے ہیں، پیشاب کیا ہے تو ایک مرتبہ پہلے اپنے ہاتھ پہ پانی ڈالیں، پھر پانی ہاتھ کو کہاں ڈالیں؟ برتن میں. پھر ہاتھ کو برتن میں ڈالیں. لیٹرین آپ نے کی ہے تو پہلے 2 مرتبہ ہاتھ دھل لیں اوپر سے پانی ڈال کے، پھر برتن وضو کے لیے برتن میں پانی کا ہاتھ ڈالیں. جنابت ہے اور آپ صرف وضو کر رہے ہیں کسی لیے؟ کھانے پینے کے لیے، تاکہ کھانا پینا حالت جنابت میں کیا ہے؟ مکروہ ہے، تاکہ آپ کی یہ کراہیت ختم ہو جائے. سننا حالت جنابت میں مکروہ ہے، تاکہ آپ کا مکروہ نہ کریں. تو کیا کریں گے؟ 3 مرتبہ ہاتھ دھل لیں گے، پھر وضو کے لیے پانی میں ہاتھ ڈالیں. اسی لیے کوئی مشکل نہیں. وہ جو 2 مرتبہ آپ لوگ دھلتے ہیں، لیکن اب جو 2 مرتبہ دھلتے ہیں کہ نہیں دھلتے، وہی کریں گے. تو یستحب فیہ غسل الیدین قبل ادخالہما الاناء، برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے مستحب ہے کہ کیا کرے مولانا؟ ہاتھ کو دھلے. مرتبہ من حدث النوم والبول، ایک مرتبہ نیند اور پیشاب کے حدث کی وجہ سے. ومرتین من الغائط، 2 مرتبہ لیٹرین کی وجہ سے. وثلاث من الجنابہ، 3 مرتبہ جنابت کی وجہ سے. ہاں مثلاً آپ مجنب ہوں اور سونے سے پہلے، نہانے سے، غسل سے پہلے آپ چاہ رہے ہیں کہ سو جائیں، کیا بہتر ہے کہ آپ کیا کریں؟ وضو کریں. وَبَسْطُ الْإِنَاءَ عَلَى الْيَمِينِ، اور کیا مستحب مولانا؟ جس برتن سے وضو کر رہے ہیں اس کو کہاں رکھنا ہے؟ عَلَى الْيَمِينِ، دائیں طرف، رائٹ سائڈ.
और जाहिर है नल से तो ये सब चीजें महफूज हो गई, लेकिन जैसे लोटे में किसी मग में लेके पानी वजू कर रहे हैं आप, तो कहाँ रखना है हमें? दाएं साइड। वल इग़्तिराफ़ बिहा, इग़्तिराफ़ सही है, ये चुल्लू में पानी लेना मुस्तहब है। हाँ, यानी पानी लेना हाथ में ताकि चेहरे और हाथों पर डालें, इसको इग़्तिराफ़ कहते हैं। और ये भी किससे करना है? बेहा यानी बिल यदिल युमना, बेहा के लिख लें बिल यदिल युमना। चुल्लू में पानी लेना है किसमें? बिल यदिल युमना, दाएं हाथ में। इसी तरह से मुस्तहब मौलाना व तस्निया, तो तस्निया जानते हैं ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहना मुस्तहब है कि जब आप वुजू करें तो बिस्मिल्लाह करें। और इसी तरह मुस्तहब वल मवमवतु, मवमवा कहते हैं मौलाना कुल्ली करना। वल इस्तिंशाकु, नाक में पानी डालना। सलासन, कितनी मर्तबा? 3 मर्तबा। वयुस्तहब्बु अयदन तस्नियतुल गसलात, जो हमें धुलना है, क्या क्या चीजें धुलनी है? चेहरा और दोनों हाथ, इनको 2 मर्तबा धुलना क्या है? मुस्तहब है। यानी चेहरे का 2 मर्तबा धुलना और हाथों का 2-2 मर्तबा धुलना मुस्तहब है। हाँ मौलाना, अब देखिए मुस्तहब वबदउल माई फी गस्लिल यदैनी, दोनों हाथों में धुलने में पानी का डालना। आला, कहा मौलाना? आला ज़हर ज़िराऐन, हाथों के बाहरी हिस्से पर या जाहिरी हिस्से पर। और ये किसके लिए मौलाना? रजूले, आदमी के लिए। और यहाँ पे बढ़ा लें ववज़उल माई फी गस्लिल यदैनी, फिर रजूले बढ़ा दें वहां। समझ में आया क्या करना है मौलाना? यानी तरीका कार ये है, देखिए कि मर्द के लिए मुस्तहब है कि वो पानी कहाँ डाले? ऊपर की तरफ। होली से तो सभी डालेंगे, तुम अकेले थोड़े डालने वाले। ये ये ऊपरी हाथ का ऊपरी हिस्सा, औरत के लिए मुस्तहब करार दिया कि हाथ का अंदरूनी हिस्सा। सही है। और उसमें भी एक तफसील ये मिलती है कि मर्द के लिए मुस्तहब है कि पहले बाहर की तरफ, दूसरी बार अंदर की तरफ। औरत पहले अंदर की तरफ, दूसरी बार में
باہر کی طرف. صحیح ہے. اس سے یقین حاصل ہو جائے گا کہ ہمارے جسم کے ہاتھ کے ہر حصے پر کیا ہوا, پانی پہنچ گیا ہے. اوپر ہاں چلے گا, پانی وہاں کوہنی پہ پہنچانا ہے. لیکن ہاں وضو کرنے میں ایک خاص خیال یہ رکھنا ہے آپ لوگوں کو کہ ہاتھ کو اس موڈ میں رکھنا ہے, ایسے بینڈ کر کے اور تب وضو کرے. اس کا فائدہ کیا ہے, چونکہ یہاں کی جو کھال ہوتی ہے وہ سمٹی ہوئی ہوتی ہے. اگر ہم ہاتھ سیدھا رکھیں گے تو یہ کیا ہوگا, سکڑی رہے گی, جس کی وجہ سے ہمارا پانی کہیں پہنچے گا کہیں نہیں پہنچے گا, جو اندر چپڑا رہ جاتا ہے اس میں. تو اس لیے ہاتھ کو ایسے بینڈ کر کے رکھیں تھوڑا اور پھر وضو کریں. اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا یہ کھال اس پہ آرام سے پانی پہنچ جائے گا. اور ہمیں پورا اس طرح سے کرنا ہے, انگوٹھیوں کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے, اس طرح سے راؤنڈ کرنی ہے. راؤنڈ آگے پیچھے کریں گے تو گڑبڑ ہو جائے گا, کیونکہ پیچھے نہیں آنا چاہیے, آگے تو جانا چاہیے, کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن پیچھے نہیں آنا, ایسے نہیں آنا چاہیے, ایسے جا سکتی ہے. تو اسی لیے اس کو کیسے گھمانا ہے, گول, تاکہ اگر پانی نہ پہنچا ہو تو پانی پہنچ جائے. والمرأة على باطنهما, اور عورت کیا ڈالے گی پانی اس کے اندرونی حصے پر. اور دیکھیے انہوں نے کیا کہا, وبالعکس فی الثانیہ, اور دوسری مرتبہ پانی ڈالنے میں اسی کا کیا کر دے گا, الٹا. سمجھ میں آیا, الٹا کیسے ہوگا, جیسے مرد نے پہلے آگے ڈالا دوبارہ کیا کر دے اندر, عورت نے پہلے اندر ڈالا تو بعد میں کیا کرے باہر, تو ہو جائے گا نا وبالعکس فی الثانیہ. اور دوسری بار دھلنے میں کیا کرے, اس کو عکس کر دے, اس کا الٹا. والدعاء عند كل فعل, اور دعا کرنا ہر فعل کے بعد مستحب ہے مولانا. وہ یہ دعائیں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام اس کو پڑھا کرتے تھے, جیسے ہے بسم اللہ وباللہ والحمد للہ الذی جعل الماء طہورا ولم یجعلہ نجسا. یعنی جب پانی پر نگاہ پڑھے تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کیا, بسم اللہ وباللہ والحمد للہ الذی جعل الماء طہورا, جعل الماء نجسا نہیں, جعل الماء طہورا ولم یجعلہ نجسا. کہ اللہ کی حمد ہے کہ جس نے پانی کو پاک بنایا اسے نجس نہیں بنا. پھر دیکھیں کلی کرنے کی دعا ہے, اللہم لقنی حجتی یوم القاک واطلق لسانی بذکرک. ناک میں پانی ڈالے تو اللہم لا تحرم علی ریح الجنہ وجعلنی ممن یشم ریحہا وروحہا وطیبہا. پھر جب چہرہ دھلے تو کہنا ہے اللہم بیض وجہی یوم تسود الوجوہ ولا تسود وجہی یوم تبیض فیہ وجوہ. اور جب دائیں ہاتھ کو دھلے تو اللہم آتنی کتابی بیمینی ولا تعتنی بیساری. نہیں, اللہم آتنی کتابی بیمینی والخلد فی الجنان بیساری وحاسبنی حسابا یسیرا. پڑھنے والا میرے نام اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دینا, جنت کی چابی بائیں ہاتھ میں, اور میرا آسان ترین قیامت کا روز حساب کرنا. پھر بائیں کو دھلنا ہے تو اللہم لا تعتنی کتابی بالشمالی, پڑھنے والے میرا نام اعمال بائیں ہاتھ میں مت دینا. ولا تجعلها مغلولة الى عنقی, میرے ہاتھوں کو
मेरे गर्दन के पीछे मत बांधना। वअऊज़ु बिका मिन मुक़त्तिआतिन नीरान, और पालने वाले मैं जहन्नम के लिबास से क्या करता हूँ, पनाह मांगता। जब सर का मसा करना है तो कहना अल्लाहुम्मा गश्फिनी बिरहमतिका व बरकातिका व अफ़्विक। जब पैर का मसा करना है कहते हैं अल्लाहुम्मा सब्बित क़दमी अला सिरात यौम तज़िल्लु फ़ीहिल अक़दाम वजअल साई फ़ीमा युर्दीका अन्नी। और रिवायतों में वालिद मौलाना कायनात ने फरमाया है कि जो इस तरीके से वुजू करे जैसे मैंने किया है, और वो जो मैंने कहा है, तो खुदा वक्त आलम उसके हर कतरा जो पानी गिरेगा उससे एक मलक पैदा होगा करेगा, जो उसकी तहबीर तस्बीह तकबीर करेगा, और उसका सवाब बरोज़ क़यामत उस इंसान के हिसाब में लिखा जाएगा। तो इनको दुआओं को याद करना है। बोला कहा तौसील मसाइल में है, सानी साहब की बहुत मिसाल देखी है ना। कल याद करनी है तो मोबाइल में है, रह के क्या करें। अरे कल एक दो तो याद हो सकती है, कुछ नहीं याद हो ना करे हो एक दो तो समझ रहे हैं क्या है। और फिर सूरह इन्ना अंज़लना की तिलावत वुज़ू के वक्त। अब यहाँ देखे मौलाना इस बात को मुकम्मल कर लें। वयुकरहु तमंदुलो, तमंदुल जानते हैं मौलाना, रुमाल से पोंछना मकरूह है। तमंदुल मिंदील रुमाल को बोलते हैं ना, रुमाल या तौलिए के इस्तेमाल से क्या करते हैं, पोंछना वुज़ू करके मकरूह है। पूछते हो ना, मकरूह है, नहीं पोंछना चाहिए। वल इस्तिआनतु बिगैरि ज़रूरत, बिना किसी जरूरत के मदद लेना, कि एक आदमी लोटे से पानी डाल रहा है, एक आदमी खड़ा है जो आपके लिए नल खोल रहा है और बंद कर रहा है, मकरूह है। वयहरुमु तौलिया, क्या माने, यानी इससे मुराद ये मत समझ लेना कि रुमाल से पोंछना मकरूह है, तौलिया से पोंछना हराम है। यहरुमु तौलिया से मुराद है वली बनाना, किसी को नायब बनाना हराम है। कि आप आराम से बैठ जाए, एक आदमी आपको चेहरा धुलाए, हाथों पे पानी डाले, आपके सर का पैर का मसा करे, हराम है। समझ में आया तौलिया से मुराद जी, वली बनाना। एक और दो नंबर के हाशिए पे आ जाइए। तबंदुल किससे है मौलाना, बिलमिंदिल। तमंदुल किससे है, मिंदिल से लिया गया है। तमसहु बिही, कि उससे आप क्या करें, पूछें। दूसरे ने में देखे आई तौलियतुल गैर लिअमलिल वुज़ू, जिम्मेदारी देना किसी दूसरे को वुज़ू के लिए, फी हालिल इख्तियार, के जब आप क्या हो, हालत इख्तियार में हो। अम्मा फिर इस्तिरार फला शैअ अलैहि, लेकिन यह है कि हमारे क्या हो गया मौलाना, हमारा हाथ पर काम ही नहीं करता, खुदा न खास्ता फालिज का असर हो गया है, हरकत नहीं कर सकते। अब ऐसे में कोई मजबूरी है तो दूसरा हमारे हाथों पर वुज़ू करा रहा है, पानी डाल के मसा कर रहा है, तो कोई हरज नहीं। लेकिन हम साहिबे हैसियत हैं, पैसे वाले हैं, हम ही नवाब साहब हैं, और मैं अपने खादिम से कहा मुझे वुज़ू करा दो। पहले जानते थे मौलाना। चले यहीं पे रुकते हैं। अब रहा मसाइल, मसाइल अभी पढ़ा देंगे, कल पढ़ा दें।
पढ़ा दीजिए आवाज। उधर से आवाज आ रही, पढ़ा दीजिए। आप कह रहे हैं कल 3 ही मसाइल है। अकु सलास मसाइल मौलाना इंदन फकत सलास। अल-ऊला ला यजूज़ु लिल-मुहद्दिसी, अगर आप मुहद्दिस हैं, चाहे वो हदस से असगर हो या अकबर, मस्सु किताबतिल कुरान, कुरान की लिखावट का छूना। और ये सानिया बनाना, इसको कायदे इस्तिस्हाब कहते हैं। जब आप उसूल पढ़ेंगे तो उसूल में एक चीज आती है यकीन साबित व शक्कुन लाहिक। तो जब साबित का यकीन होता है, बात वाले में शक होता है, तो हम यकीन को लेते हैं, शक को छोड़ देते हैं। तो यहां पे कह रहे लौ तयक्कन हदसा, अगर किसी को हदस का यकीन हो, जैसे पेशाब करने गया मालूम है, वह शक का तहारत, लेकिन तहारत में शक है कि उसके बाद वुज़ू किया नहीं किया, तताहरा, वो क्या करेगा, तहारत करेगा। वबिल अक्स ला यजिबु तहारता, लेकिन इसके बरअक्स तहारत वाजिब नहीं है। यानी क्या मतलब, कैसे हो सकता है, अगर किसी को तहारत का यकीन हो और हदस में शक हो तो अपने आप को पाक समझे। मिसाल के तौर पर हमने वुजू किया था, हमें मालूम है, अब शक हो रहा है उसके बाद कोई ऐसा काम तो नहीं किया जिससे वुजू बातिल होता है, शक है, लेकिन वुजू का क्या है, यकीन। उसके बाद हमें शक हो रहा है, रिया तो नहीं खारिज हो गई, उसके बाद पेशाब करने तो नहीं गया, तो कहा शक की परवाह नहीं करेगा, आपको अपने आप को बावजूद मानेगा। आपको यकीन था कि आपने हजरत साहब से शादी हुआ था, पेशाब करने गए थे, आप यकीन है, शक है कि उसके बाद वुजू किया या नहीं किया, तो अपने आप को क्या मानेंगे, मुहद्दिस मानेंगे और फिर वुजू करेंगे। यही बात इन्होंने कही, मौलाना लौता हदसा, अगर किसी को हदस का यकीन हो, शक हो, पता हरा तो तहारत करेगा। वबिल अक्स ला यजिबु तहारा, लेकिन इसके बरअक्स तहारत वाजिब नहीं है। तीसरा मसला देखा मौलाना, लौ शक्क फी शैइन मिन अफ़आलिल वुज़ूइ व हुवा अला हालिही अता बिही व बिमा बअदिही वलौ इनसरफ़ा लम यल्तफ़ित। समझ गया मौलाना, कह रहे हैं ये मसला समझ लीजिए, पहले उर्दू में फिर अरबी का तर्जुमा करता हूं कि अगर आप वुज़ू कर रहे हैं, वुज़ू करते करते हालत वुज़ू में आपको शक होने लगा, मिसाल के तौर पर दाया हाथ धुल रहे थे या बाया धुल रहे थे, बाया धुलते धुलते आपको शक हुआ कि आपने चेहरा धुला या नहीं धुला, वापस से आप चूंकि अभी वुज़ू कर रहे हैं, वापस फिर चेहरा धुलेंगे, फिर दाया धुलेंगे, फिर बाया धुलेंगे, ताकि तरतीब आपकी सही हो जाए। इसको कहते हैं कि लौ शक्क फी शैइन मिन अफ़आलिल वुज़ू, अगर वुज़ू के अफ़आल में किसी में शक होने लगे, वहुवा अला हालिही, और वो वुज़ू की हालत में हो, वुज़ू कर रहा हो, अता बिही, तो उस चीज को जिसमें उसे शक हुआ है क्या करेगा, अंजाम देगा। वबिमा बअदिही, और जो चीज उसके बाद है उसको भी अंजाम देगा। वलौ इनसरफ़ा, वुज़ू जहां कर रहे थे वहां से हट गए वुज़ू करके, फिर शक हुआ कि आपने चेहरा धुला था या नहीं, या चेहरे का कुछ हिस्सा बाकी तो नहीं रह गया, कहा लम यल्तफ़ित,
अपने शक की तरफ मुतवज्जे नहीं होगा। लेकिन याद रहे, शक रहे, यकीन नहीं। आपको पता है कि हाथ की कोनी रह गई, नहीं धुली, किसी ने दिखाया, अरे क्या वजू करके आए हैं आप, ये देखो सब सूखा पड़ा है। तो अब यहाँ मुतवज्जे होने की जरूरत है, यहाँ जाएंगे और दोबारा वजू करेंगे। लेकिन ये उसका वक्त का मसला है कि आप वजू करके आए और आपको थोड़ा वो है, डाउट है कि पता ना हर चीज सही से धुल गई या नहीं, पानी पहुंच गया या नहीं, मानिए पहुंच गया। सही, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने शक की परवाह नहीं करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।